आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक प्यारा सा पॉडकास्ट विद प्यारी सी सोनाली, जो अभी एक मदर है बट शी इज ऑल्सो एंटरप्रेन्योर और बहुत सी चीजें वो कर रही है एज अ ट्रेनर, एज अ कोच। बहुत से लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं। उनका बड़ा सा पेज भी है इंस्टाग्राम में, आप उनका पेज भी चेक करिएगा। और आज हम लोग उनके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे उन्होंने ग्रोथ पाया सिर्फ अपने माइंड को ट्रेन करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इनको सब वो उन्होंने अप्लाई करके कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस आए, इसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम सोनाली टू आवर पॉडकास्ट। Thank you, Razia. Thank you so much for the warm welcome. And I hope this podcast is going to deliver a lots of knowledge and value to our audience. And definitely, Yes, it's going to prove a life-changing podcast for all of us. And definitely, through this video, the people are going to change their life 100%. So let's start for राइट, the यस। तो मुझे जस्ट बताना सोनाली, जस्ट लेट मी नो, व्हेन डिड यू कम टू नो अबाउट दिस मैनिफेस्टेशन। एंड उसके पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ, आई एम रजिया बेगम और मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। एज एन एजुकेटर आई स्टार्टेड माई जर्नी। उसके बाद में मुझे पता चला बहुत से लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग को उन प्रॉब्लम्स को अपने माइंड को ट्रेन करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे जो ये ट्रेनिंग्स वगैरह हम लोग देते भी इस चीजों के लिए। और सोनाली भी ये चीजों को अप्लाई की है, इसीलिए तो उन्होंने सक्सेसफुल लोगों के हिसाब से जो भी चीजें फॉलो करना है उसको फॉलो करते हुए अपने लाइफ में सफलता को पाई है। सो मैं भी उनकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग उनकी जर्नी है। सो आई जस्ट वांट टू नो सोनाली, लेट मी नो व्हेन डिड यू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट एंड हाउ इट चेंज्ड योर लाइफ। And before that, let me know little bit about you so that our audience also come Okay, to know about perfect. you. That Who that are was you about exactly? to tell. Yes, Yes. so let me introduce myself first. So I am Sonali Gupta. Basically, I am an Indian girl, but I have left the India 2 years back. Now I am a NRI and I stay in Qatar. I have been in India for around 28 years. And out of 28 years, I was born and brought up in UP itself, graduated over there. Then, after had the 9 years of corporate experience in the Delhi NCR. And then, after I have traveled the whole India solo. So, I have been a very bold and strong personality because my mom was the single parent and I was the single child of hers. That was the reason she has actually nurtured me like a son only. And I have developed a very bold and a manly personality in myself that I never look forward for a shoulder of a man to stay in my life. I was enough capable to struggle to face each and every challenge in my life by my alone. And that was all about me. And yes, in addition to that, I would like to tell you something about myself. I am also a world record holder. I have I have achieved the world record in which we as a SRMS trust team has made the world record in which we have sung for around 28 minutes, 46 seconds, and 10 seconds. So that was the record for which our name is there in the Guinness Book and Limca Book of World Record. And apart from that, like my name and newspaper photo, I have received multiple times for the recognition as a training specialist. And after being a new mom, I was realizing that it might be the scenario in the near future that I can lose my identity. तो मुझे इस बात का डर था कि नियर फ्यूचर में कहीं मैं अपनी आइडेंटिटी लूज ना कर दूं बीइंग अ न्यू मॉम. तो दैट वाज द रीजन कि मुझे लगा कि इट्स हाई टाइम. बिकॉज अगर आज से 5 से 6 साल के बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा और तब मैं अगर इनिशिएटिव लेने की कोशिश करूंगी, सो मुझे नहीं लगता था. ऑफ कोर्स लगता क्या था वही होने वाला था डेफिनेटली कि मुझे उस वक्त तक वो काम कर ना करने की और घर पे रेस्ट लेने की शायद एडिक्शन हो चुकी होगी. एंड सही। डेफिनेटली आई से कि 99.99% लेडीज कैन रिलेट टू दिस.
कि पहले वो अपनी मजबूरियों और जिम्मेदारियों की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते करियर में, या स्टॉप हो जाते हैं और वो उसको पॉज करने की कोशिश करते हैं सिर्फ, बट उन्हें पता ही नहीं होता कि ग्रेजुअली विद द टाइम वो जो उन्होंने कॉमा लगाया था, वो पॉज लगाया था, वो कैसे फुल स्टॉप बन जाता है। So it's very important to keep yourself updated into the industry. आप अपने skills को upgraded रखें, and definitely once you have will work for yourself, no, then only your child is going to respect you, and even I'll say Right. everyone is going to respect you once you will be respecting yourself. So that Correct. is all about my journey. And your next question was when I came to know about the manifestation. ओके, Yes. सो Yeah. मैं ऑनेस्टली बोलूंगी इस चीज को, डेफिनेटली आई से मैनिफेस्टेशन हैज अ लॉट ऑफ पावर, एक्चुअली अ लॉट ऑफ पावर दैट इट कैन ट्रांसफॉर्म योर डिग्री, सॉरी, इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ completely. So and when I came to know, I think 2 years back, I came, sorry, 2.5 years back, I got to know about this manifestation. और जिस वक्त, जिस दौरान मुझे अपनी जिंदगी में ये मैनिफेस्टेशन के बारे में पता लगा, वो फेज था मेरी लाइफ का जब मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस थी। मुझे लाइफ में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 7 years हो चुके थे मेरे लिए एक लड़का ढूंढने के लिए। हम लोग शादी के लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रही थी, बट कोई भी मेरी रिक्वायरमेंट में फिट नहीं होता था, या कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होती थी, समथिंग लाइक दैट, सो एंड सो रीजंस, बट कहीं पर भी वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ पा रहे थे। एंड अ टाइम केम इन माय लाइफ कि मुझे लगने लग गया कि नहीं, ये मेरे लिए शायद बनी ही नहीं है शादी, और मुझे नहीं करना, एंड इट्स नॉट लाइक माय कप ऑफ टी, एंड आई जस्ट डिसाइडेड टू गिव अप। मुझे लगा ठीक है, लाइफ तो चल ही रही है तो लेट इट बी। बहुत सारे सपने थे, बहुत ही एम्बिशियस लड़की थी मैं, अकेले थी हमेशा से, तो रहना अकेले और जिंदगी में आगे बढ़ना तो मैं बहुत पहले से जानती थी। बट स्टिल आई हैड अ लॉट्स ऑफ ड्रीम इन माई आईज कि मेरे पास ये लग्जरीज होनी चाहिए, एक ऐसा इंसान होना चाहिए, क्योंकि आई होप कि एक आज के टाइम में हर किसी की विशेष होते हैं। हर इंसान क्या चाहता है? अच्छी लग्जरीज पाना, एक मटेरियलिस्टिक ही बोलेंगे बट यस, एक अच्छी लाइफ लीड करना, एक खुशनुमा जीवन, और उसके साथ एक अच्छा लाइफ पार्टनर, मतलब तन मन और धन का सुख इंसान चाहता है इन शॉर्ट, जो कि मेरी ही विश लिस्ट का पार्ट था, और बहुत ही डिप्रेस थी। सो देयर वाज अ गर्ल हु टोल्ड मी अबाउट दिस। आई सॉ अ मूवी ऑन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, कि एक दिन मुझे जब इसके बारे में पता लगा, तो मैंने देखा कि इसे कैसे मैनिफेस्ट करना है चीजों को, बिकॉज अभी हम कुछ भी बोलते हैं तो शायद देयर इज अ चांस कि हम शायद भूल जाएं उस चीज को। सो द बेस्ट वे इज कि उसको लिख के रखो, ऐसी जगह लिख के रखो जहां पर आप सुबह शाम उसको देखो। सो एटलीस्ट सोने से पहले और जागने के बाद वो चीज आपको दिखे, ताकि अगेन एंड अगेन आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको बार बार ट्रैक करे, एंड यू हैव टू फील लाइक कि वो चीज आपकी विश लिस्ट नहीं है, वो चीज आपकी आने वाले टाइम की रियलिटी है, एंड यू हैव ऑलरेडी अचीव दैट। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स लाइक कि आप अगर खुश हो तो ही आपको आगे आने वाले टाइम पर खुशी मिलेगी। इट्स लाइक कि हैप्पीनेस अट्रैक्ट्स ही हैप्पीनेस। अगर आप हमेशा क्रिप करते रहोगे कि मेरा तो यार कोई काम बनता ही नहीं है, मेरी ही लाइफ ऐसी है, मेरे साथ ही गलत होता है, ट्रस्ट मी, ऐसे लोगों के साथ अच्छा होने के चांसेस 0.0001% रह जाते हैं, just because of the Right. reason because they keep crying all the time, and because of this fact कि वो हमेशा रोते रह जाते हैं, उनको जीवन में रोने के अलावा कुछ और हासिल हो भी नहीं पाता। सो कहते हैं ना, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। सो यूनिवर्स क्या करता है? इट्स लाइक द न्यूटन्स थर्ड लॉ, every action has equal and opposite reaction. So whatever you are throwing into the universe, it is giving you back. So अगर जी। आप उसमें पॉजिटिविटी दे रहे हो तो ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग दी पॉजिटिविटी। सो मैंने वहां से वो मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया। बहुत सारे ड्रीम्स थे मेरे, एंड इफ आई शेयर द डिटेल्ड पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशन, मेरा था कि मेरा एक घर हो, वो भी स्पेसिफिक था, कितना बीएचके होना चाहिए, कैसी गाड़ी होनी चाहिए, सनरूफ चाहिए, कन्वर्टेबल चाहिए,
एक ऐसा इंसान चाहिए जो जैम हो, जिसकी जो मेरे लिए एक लाइफ में सेंटा क्लॉज की तरह आए, जो मेरी सारी विश लिस्ट पूरी कर सके। एंड वो जो आज तक मुझे कहीं न कहीं वो प्यार की कमी है, वो अफेक्शन, वो चीज़ें मुझे मिल पाएँ। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट येस इट वाज़ इन माय विश लिस्ट कि मुझे इन पर्टिकुलर जगह ही सेटल होना है। आई वांटेड अ प्लेस जहाँ पर कभी सर्दी ना पड़ती हो। सो आई गॉट द प्लेस एक्चुअली कनाडा, मेरे तो कनाडा यस नहीं चाहिए था, स्विट्जरलैंड कनाडा नहीं नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं सर बिकॉज़ मुझे ठंड से बहुत फ़ोबिया है। ये समझो जब मैं इंडिया में रहती थी तो मैं काउंट डाउन करती थी कि ये विंटर्स कब गुज़रेंगे, ऐसा होता था। जी, सो सर्दी आई होती वाज़ ऑलवेज़ यस, यस। है। तो मैं आई कैन से कि मैं बीच पर्सन हूँ रादर देन द माउंटेन पर्सन, जहाँ पर आराम से आप खुले होके घूम सको खुली हवा में, मुझे वो पसंद है। रादर देन इन द माउंटेन्स की जहाँ पे इतने सारे कपड़े पहनना और फिर यस, इंसान आधे से ज़्यादा वो ठंड के उसमें ही होता है। So I can't enjoy much in the mountains, but yes, definitely it's good. So ultimately जो-जो चीज़ें मेरी विश लिस्ट का पार्ट थे, एक-एक करके you won't believe कि within 45 days I'm telling you the tat July end में I started it and on 23rd of August I met my life partner. Within the span of 30 days, last to last 45 days, I got everything and नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर-अंदर मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि एक न नॉर्मल सी फैमिली से बिलॉन्ग करने वाली लड़की जो बहुत ही एवरेज स्टैंडर्ड वहाँ पर रह रही है। ऑल्दो मैं बहुत लग्ज़री लाइफ अपने लेवल पर जी रही थी, बट स्टिल जो-जो मेरी विश लिस्ट थी इतनी जल्दी पूरी हो पाएगी आई नेवर थॉट ऑफ द सेम। वो भी इतने डिप्रेस्ड फेज़ में। बट एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, यू जस्ट नीड द पावर एंड आपको मैनिफेस्टेशन स्किल आना चाहिए। Aditi, what is your क्या बोलते हैं advice for the people who are struggling in life? They want to get good partner, they want good, you know, मतलब लाइफ, ड्रीम लाइफ उनको भी चाहिए, काम चाहिए, पैसा चाहिए, राइट? तो अभी के जवानों को क्या आप नसीहत देना चाहेंगे? What do you want I'll to give advise them? I'll give the message to the audience कि मैं अपने सभी भाई बहनों दोस्तों सबको ये सलाह दूंगी कि अगर आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हो ना तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। अपनी सोच को ऐसे मत सोचो। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि छोटा काम उन्हें करना नहीं है और बड़ा वो कर नहीं पा रहे हैं। तो वो इसी कश्मकश में कहीं न कहीं फँसे हुए रह जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, डोंट लुक फॉर द परफेक्शंस। ऐसा नहीं है कि मैं करूँगा तो ये परफेक्ट ही होना चाहिए, नो, कीप डूइंग। कोई भी रातों-रात बिलियनियर नहीं बना है। इट्स नॉट ओवरनाइट गेम। अगर आप मैनिफेस्ट भी करना स्टार्ट करोगे तो ऐसा नहीं है कि आज आपने 5 बजे स्टार्ट किया और सुबह 5 बजे आप बिलियनियर बन गए। वो भी एक प्रोसेस है। यू विल ट्रेन योर माइंड। अब वो डिपेंड करता है कि आपका जो अट्रैक्शन है वो कितना स्ट्रांग है। अगर आपने बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया है तो आपको वो जल्दी मिल जाएगा। अगर आपने स्लो अट्रैक्ट किया है तो आपको वो लेट मिल जाएगा। बट नथिंग इज़ ओवरनाइट गेम एंड माय लाइक नेक्स्ट गोल और स्टेप इज़ लाइक कि अभी लाइफ में सब कुछ जो-जो चाहिए था ऑफ कोर्स मिल गया है। बट येस स्टिल आई एम नॉट लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी कि अभी मैं अपने पति की पत्नी और अपने बच्चे की माँ के नाम से जानी जाऊँ और मैं खुश रहूँ, मैं वैसी वाली टाइप की बिल्कुल भी बंदी नहीं हूँ। तो मेरा है कि मेरी अपनी आइडेंटिटी एक होनी चाहिए एंड इवन माय हस्बैंड, माय मॉम, माय चाइल्ड एंड इवन माय अदर फैमिली मेंबर्स शुड बी प्राउड ऑफ मी। जो कि बोल सके, राइट, जिनको भी लगे कि हाँ, शी इज़ माय मॉम। तो मैं अपने आप की मैं सबकी रिस्पेक्ट करना चाहूँगी, अपने और अपने लोगों की अपने साथ-साथ, लेकिन चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम। मैं सबकी रिस्पेक्ट या करूँगी लेकिन स्टार्ट मैं खुद से करूँगी। आई विल रिस्पेक्ट एंड लव माई सेल्फ फर्स्ट। आई विल प्रायोरिटाइज़ माई सेल्फ फर्स्ट बिकॉज़ वन्स आई विल बी हैप्पी देन ओनली आई विल बी एबल टू मेक अदर्स हैप्पी। अदरवाइज़ देयर इज़ यस, नो पॉइंट कि मैं अपनी खुशी को त्याग कर त्याग की देवी बनकर किसी और को खुश करने की कोशिश करूँगी ना, दैट विल बी वेरी टेम्परेरी एंड दैट विल बी फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम और उसमें भी आप किसी और को खुश कभी रख ही नहीं सकते। तो आई गिव एन सही है, एग्जांपल, जैसे कि आप रोड पे कभी ट्रेवल कर रहे हो और आपने कभी बहुत ही कोई मासूम सा बच्चा देखा है, बहुत ही इनोसेंट, मतलब वो अभी अंडर 1 की एज का है और बहुत छोटा है, उसे कोई समझ नहीं है और आप बहुत ही निराश हो अपनी ज़िंदगी में, थके आ रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो और अगर आपको बच्चा दिखेगा ना, ट्रस्ट मी,
फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स यू विल फॉरगेट ऑल ऑफ योर वरीज। कुछ सेकंड्स के लिए ना आप अपनी सारी चिंताएं भूलो, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ नैनो सेकंड्स के लिए आप बिल्कुल भूल जाओगे जब आप उसके चेहरे को देखोगे। तो इट्स लाइक सेम कि अपने आप को भी उस बच्चे जैसा ही बना लो। अपना फायदा देखो। अगर आपको लगता है कि किसी की बात सुनने से आपकी मेंटल पीस अच्छी होती है, देन प्लीज गो फॉर इट। और अगर आपको लगता है किसी की बात सुनने से आपकी मेंटल पीस हैम्पर हो रही है, देन प्लीज इग्नोर इट। आप अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटाइज करें, अपने सपनों को प्रायोरिटाइज करें, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करें, एंड गो फॉर इट एंड ट्रेन योर माइंड पॉजिटिवली, सो दैट जो आपको चाहिए वो उतना जल्दी मिल सके और उससे ज्यादा अच्छा मिल सके, बेहतर मिल सके। तो ऊपर वाला हमेशा जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। तो और बहुत ज्यादा एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रीडी होना इज नॉट गुड। So there is the Yes. difference between being ambitious and being greedy. So there is a very fine line between both, being the greedy and being the ambitious. तो महत्वाकांक्षा और लालच में बहुत बारीक फर्क है। इस फर्क को लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी सही है। एम्बिशन जब तक आपकी एम्बिशंस आपका भला कर रही हैं, तब तक ठीक है, गो फॉर इट। लेकिन जब आपकी एम्बिशंस किसी और का बुरा करने लग जाए ना, जस्ट स्टॉप इट। जस्ट स्टॉप इट एट द मोमेंट, बिकॉज आपके सपने ऐसे होने चाहिए जो आपकी उड़ान भरें, ना कि किसी और की छीन लें। सही है। वेरी वेरी नाइस। एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर सोनाली टू जॉइन दिस पॉडकास्ट। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, योर जर्नी को जान के। आई एम सो हैप्पी दैट यू गोन थ्रू सो मच ऑफ स्ट्रगल्स, और अभी आप बहुत अच्छा जिंदगी गुजार रहे हैं। आई विश यू लॉट ऑफ सक्सेस, और ऐसे ही और कामयाबी शेयर करते रहिए हमारे साथ, और श्योर। आगे बढ़िए अपने लाइफ में, और बहुत अच्छे काम करते रहिए लोगों के लिए भी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। इट्स ऑसम पॉडकास्ट विद यू टुडे, एंड कीप श्योर स्माइलिंग। अगेन। एंड एंड आई से अगर किसी को भी सक्सेस मिलता है, खुशियां मिलती हैं, तो उसे बांटने से, खुशी बांटने से बढ़ती है। तो यस ऑफ यस। कोर्स अगर आपको कुछ हासिल हो चुका है ना जिंदगी में, तो अपने उन दिनों को कोई भी कभी ना भूले जहां से, उस जिन रूट से वो निकला है। दिस इज माई सही मैसेज टू है। एवरीवन, दिस इज द मैसेज टू ऑल आवर ऑडियंस, कि अगर आपने जिंदगी में किसी मुकाम को हासिल किया है और मेहनत से किया है ना, तो आप प्लीज उसे पाने के बाद एक घमंड में ना आए। आप अपने उन दिनों को जरूर याद करें कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, और उसे याद करके आप उन लोगों की मदद जरूर करें जो कि आप ही के पुराने जैसे फेज में हैं आज। क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद ना आपको सैकड़ों दुआएं दे सकती हैं, और आपकी एक दुआ आपकी जिंदगी फिर से दोबारा कैसे बदल देना, यू विल नेवर नो, बिकॉज यू ब्लेसिंग आर हैज लॉट्स परफेक्ट। ऑफ पावर। यस यस। इस जर्नी में उनको गिव बैक भी करना है यूनिवर्स को, मतलब जैसे यस, लोगों यस, के थ्रू, लाइक करेक्ट बात करेक्ट करेक्ट। बात को ऐसा अच्छा नहीं कि करे। आपको चीजें मिलने लग गई तो आप एकदम रावण बन रहे हैं, और उसके बाद आप समझ ही नहीं रहे, अरे मैंने तो सब कुछ पा लिया। बिकॉज सब कुछ तो रावण ने भी पाया था, सोने की लंका थी उसके पास, सब कुछ था, बट लास्ट में क्या हुआ, दहन ही हो गया ना, कुछ नहीं बचा। तो सब कुछ पाना पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पाने के बाद उसे कायम रखना मुश्किल है। बिकॉज लोग यस अच्छी चीजें पाने के बाद ना एक ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड स्टेज में आ जाते हैं, एक ऐसी स्टेज में चले जाते हैं, सैचुरेशन स्टेज में, जहां पर फिर वो कुछ और नया सीखने या किसी का भला करने की सोचते नहीं है, वो भूल जाते हैं अपने पुराने दिनों को। सो प्लीज डोंट डू लाइक दैट। और अगर इसके अलावा कोई भी चीज किसी को भी लगती है ऑडियंस में से कि उनको हेल्प चाहिए, डेफिनेटली दे कैन रीच आउट अस, मी और रजिया, मी सोनाली गुप्ता एंड रजिया। एंड आई से दी गाइज, आई होप कि जो मेरी स्टोरी है इससे आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। और अगर मेरी स्टोरी से अगर आपकी लाइफ में, आई से 1% तो बहुत ज्यादा होता है, अगर 0.5% भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आएगा ना, आई थिंक कि चलो सक्सेसफुल है। बिकॉज छोटे छोटे चेंजेस भी आपकी लाइफ में अल्टीमेटली बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। सो आई विल बी यस। थैंकफुल कि मेरी चीजों से किसी को कुछ इंस्पिरेशन मिले, और क्या पता वो कुछ ट्रेन करना अपने माइंड को स्टार्ट कर दें। एंड सही है। डेफिनेटली ऐसे ही वो भी अपनी सक्सेस स्टोरीज को शेयर करें बाद में। एंड इवन इफ यू आर फीलिंग एनी चैलेंज, डेफिनेटली फील फ्री टू कनेक्ट अस, एंड जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग अस, subscribe, like and comment, so that we will be highly motivated to bring the good content like this for you in future.
यस यस ऑफ कोर्स। अपने कोई भी प्रॉब्लम से हमें कमेंट में बता सकते हैं, सो दैट वी कैन गाइड यू। और कुछ अगर सेशंस चाहिए हम आपको, तो आप पर्सनलाइज सेशंस भी ले सकते हैं और लाइफ चेंज कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल जस्ट टू स्टे इन द डार्क एंड क्राई, ऐसा सही नहीं है, राइट? तो आपको उससे आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ अच्छा चीज करना है। अपने माइंड से स्टार्ट करिए और आप जरूर कुछ पा सकते हैं अपने लाइफ। जी। Yes, so even I am ओके। working for the 360-degree transformation of the people, जहाँ पर easily आप अपने mind को, अपने financial condition को and fitness को, तीनों को कैसे transform करना, I can help you out in all the ways whichever I'm doing right now. So easily you can connect, and definitely we hope that you will be having the great life ahead. So keep यस smiling यस till the time. यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द Thank you नेक्स्ट so much. एपिसोड। ओके, या। Sure, ओके, sure. बाय। Thank you, Razia. Bye bye. Definitely. एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, नॉट Correct. व्हाट यू वांट। तो यू शुड बी ग्रेटफुल, यू शुड बी हैप्पी, देन ओनली यू अट्रैक्ट दोज थिंग्स यू डिजर्व Gratitude. एक्चुअली। Yeah, you Gratitude. feel deserving and you should feel that कि excitement भी होना है कि yeah, I'm getting it. You should not be like worrying about it कि कब होगा, कहाँ होगा। So it will Mhm. make your manifestation not work at all। आपका जो ये है, बहुत से लोग बोलते हैं manifestation बकवास है, ये सब क्या है। ये कुछ लोग बोलते हैं ये ब्लैक मैजिक भी होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ अपना थॉट प्रोसेस जो है उसको क्लियर करना है। और बहुत से सक्सेसफुल लोग जो है, बहुत चीजों को अचीवमेंट किया है, वो हर इंसान ये मॉर्निंग का सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम करना, ये सब करते हैं। नोइंगली अननोइंगली लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, ये है रियलिटी एक्चुअली। Yes, yes. It's the art of training your mind, actually.